Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my next video lecture. Today we will start a new chapter, that is bioenergetics. In this chapter we will try to understand energy transformations in living organisms, redox reactions, and then ATP, the cell's energy currency. First, we will try to understand what is bioenergetics. Is the study of energy relationships and transformations in living organisms. अब ये कौन सी टाइप की एनर्जी की बात हो रही है? Is all you know that organisms utilize food as a source of energy. तो जब भी फूड की ब्रेक डाउन हो जाती है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है, जो कि ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं ऑल दे रिक्वायर एनर्जी. तो जब भी फूड की ब्रेक डाउन होगी तो इस ब्रेक डाउन के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है. बट द फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बोन्स. बॉन्डिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं या सेल के अंदर फूड की ब्रेक डाउन होती है, एंड दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी विल रिलीज बाय ब्रेकेज ऑफ दीज bonds. Is all You have already studied the metabolic reactions, anabolism and catabolism, जिसमें complex molecules break down होके simple molecules बनते हैं, या simple molecules will combine to form a complex molecule. तो उस दौरान भी energy involve हो रही होती है. energy potential energy जो bonds के अंदर store है, उनकी जब breakage हो जाती है तो वहाँ से kinetic energy release हो जाती है. These both type of energies, their relationship and their conversion, कि अगर आप स्टडी करें तो that is known as bioenergetics. Uh, but all these metabolic reactions, they are based on redox reactions. आपने पहले सुना होगा कि oxidation और reduction reactions. If oxidation and reduction reaction both simultaneously occur in any chemical reaction, that is known as redox reaction. उनको हम redox reactions कहते हैं. But what are these oxidation and redox reactions? We will discuss in next slide. Before moving towards their slide, we will see the energy transformations in living organism. कि जो photosynthetic जो organisms हैं उनके अंदर carbon dioxide they will obtain carbon dioxide from atmosphere, and then in the presence of sunlight they will convert it into food stuff. Here you can see in diagram that this CO2 will reduce in the presence of sunlight to produce CHO, which is food stuff actually. This food stuff will then utilized by different organisms. What will happen during utilization? The oxidation of this food stuff will occur to release energy. During this process, some amount of heat also will release. Here you can see this is heat, and then extra amount of energy will be stored in the form of ATP. ATP एक एनर्जी स्टोरेज एक कंपाउंड है जो कि एनर्जी स्टोर करता है. तो जब ये फूड ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस दौरान वहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाती है, जो कि आपका सेल उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है. उसके बाद जो बाकी एनर्जी जो बचता है दैट विल स्टोर फ्यूचर के यूज़ के लिए, ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज़ अ केमिकल कंपाउंड. तो ये केमिकल कंपाउंड इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये एनर्जी स्टोर करता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब सेल को एनर्जी की नीड होती है, क्योंकि आप जो भी फूड यूटिलाइज करते हैं आप 24 आवर्स फूड की यूटिलाइजेशन तो नहीं करते हैं कि हर टाइम फूड से ही डायरेक्टली आपको एनर्जी मिले. एक दफ़ा जब आप फूड यूटिलाइज करते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड यूटिलाइज करता है तो यूटिलाइजेशन के दौरान जो बोन्स की ब्रेकेज हो जाती है उससे जो भी एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी यूटिलाइज बाय दैट ऑर्गेनिजम्स, but extra amount of energy will be stored in the form of ATP. And this transformation of energy which was already stored in the ATP will be utilized for various processes, just like active transport, maintenance of cell and chemical synthesis. During these all processes some amount of heat will also release.
What are redox reactions? Oxidation and reduction, if both occur simultaneously, they are known as redox reactions. What is oxidation reaction? Here in this diagram, you can see that this type of compound, which is A, will convert into this type of A आफ्टर ऑक्सीडेशन. तो उस प्रोसेस के बाद हम इसको कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो चुका है. ऑक्सीडेशन के दौरान होता क्या है? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. इफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है, तो जब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको हम कहते हैं कि उसने हाइड्रोजन लॉस किया. तो हाइड्रोजन की लॉस या इलेक्ट्रॉन्स की लॉस, दोनों को हम मिला के कहते हैं कि दिस इज ऑक्सीडेशन. दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड reduction is totally opposite of oxidation, where oxygen is released and electrons are gained and hydrogen is also gained. तो इसके दौरान फिर क्या होगा? रिडक्शन के दौरान, हियर यू कैन सी दैट दिस बी सब्सटेंस विल रिड्यूस आफ्टर गेनिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स. दो इलेक्ट्रॉन्स इसने जब गेन किया तो ये इस टाइप का बी में कन्वर्ट हो गया. तो इसको हम कहते हैं कि बी इज रिड्यूस्ड, बी रिड्यूस्ड हो चुका है. तो एक साथ अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज अगर हो जाए और फिर दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो जाए, तो उसको मिला के हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये एनर्जी के साथ ये लिंक्ड होते हैं. क्योंकि एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शंस के दौरान बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, फिर वो एटीपी की सूरत में स्टोर हो जाती है नेक्स्ट फिर फ्यूचर यूज के लिए. एंड एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी. एटीपी के अंदर ये एबिलिटी है कि इट कैन स्टोर एनर्जी in the form of phosphate groups. Here in this compound, this is the structure of whole ATP, which contain three phosphate groups. PO4 को हम phosphate group कहते हैं, and there are three phosphate groups you can see here. और दरमियान में जो ये साइन आपको नजर आ रहा है, this actually represents the amount of this actually represents the energy storage. कि ये जो साइन है ये कह रहा है कि यहाँ पे एनर्जी मौजूद है या एनर्जी स्टोर्ड हुआ है. अब आपके सेल के अंदर जो भी एटीपी स्टोर्ड है उसकी एनर्जी डिफरेंट प्रोसेसेस के दौरान यूज हो रही होती है, जस्ट लाइक मूवमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ योर नर्व इम्पल्स. जो न्यूरॉन्स के अंदर जो सिग्नल जाती है, दे ऑल्सो नीड एटीपी. एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द active transport also required ATP, and exocytosis also require ATP, endocytosis, and all these processes depend on ATP availability. तो आपके सेल के अंदर ATP अगर होगा तो दैट मीन्स कि ये प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो उनके लिए ये ATP बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Here in this diagram we can see the structure of ATP. ATP has three parts. First part is the nitrogenous base, which is adenine. Here you can see adenine is double ringed nitrogenous base. नाइट्रोजनस बेसिस सिंगल रिंग्ड भी हो सकते हैं, डबल रिंग्ड भी हो सकते हैं, लेकिन एडनिन ये वो नाइट्रोजनस बेस है जो डबल रिंग्ड है. डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस के साथ एक 5 कार्बन कंटेनिंग एक पेंटोज शुगर हम जिसको कहते हैं, एंड दैट इज राइबोज. राइबोज इज ए टाइप ऑफ पेंटोज शुगर. दरमियान में पेंटोज शुगर जो कि राइबोज मौजूद है, एक साइड पे फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, दूसरे साइड पे एडनिन मौजूद है. तो इस होल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दिस इज एटीपी. हियर यू कैन सी द थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हियर. ट्राई थ्री को कहते हैं एडिनोसिन. अगर एडनिन राइबोज के साथ मिलता है तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं दिस इज एडिनोसिन. If you add a single phosphate group here, then we call it as adenosine monophosphate. And if you add two phosphate groups, then we call it as adenosine diphosphate. And if you add three phosphate groups, here you can see
the 3-phosphate groups, we call it as adenosine triphosphate. This ATP will release energy by process of hydrolysis. This is hydrolysis reaction. ये इसमें आपको हाइड्रोलाइसिस हो रही है, जो कि आपको नजर आ रहा है कि ये हीट रिलीज कर रही है, एनर्जी रिलीज कर रही है, जो कि हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है. व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? कोई भी कंपाउंड की अगर ब्रेक डाउन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस. एटीपी अब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स थे जिनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई थी. जब वाटर की मौजूदगी में ये हाइड्रोलाइज होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ऑब्वियसली एक फॉस्फेट निकलेगा तो 2 रह जाएंगे, एंड इट विल रिलीज 7300 कैलोरीज पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि आपका सेल इस एनर्जी को यूज करेगा. एंड दिस एडीपी, जो कि 2 फॉस्फेट ग्रुप्स रह गए हैं, यहां से ये आप रिवर्स में जा सकते हैं. 3 में से जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू एडीपी, एडीपी विल कन्वर्ट इनटू एएमपी, और एएमपी से अगर आप एक और फॉस्फेट निकालते हैं तो दिस विल कन्वर्ट इनटू एडिनोसिन. This ADP has ability to lose a phosphate group. After losing phosphate group, it will convert into adenosine monophosphate. Again, it will release 7300 calories per mole of energy. तो ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप अंदाजा लगाएं कि एटीपी एनर्जी स्टोर करता है. तो जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ से एनर्जी निकलती है. दैट मीन्स के एटीपी के अंदर यस इट कैन स्टोर एनर्जी. ये एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्योंकि जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको ये एनर्जी जो है ये आप एनर्जी रिलीज करते देखते हैं. तो दैट मीन्स के ATP can store energy, or ये phosphate groups are responsible actually for storage of this amount of energy. Thank you so much for watching my video.